Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As in the class 7th J Science, we are on chapter 17th, electric current and its effect. Today we discuss the question answers of this lesson. Our first part A, filling the blanks are there. First one is when the current is switched on, an electric fan converts electric energy mainly into the mechanical energy. यहाँ क्या आएगा, electric energy into mechanical energy. When current is switched on in a room heater में अगर current हम pass करेंगे, switch on करेंगे उसका, it converts dash energy into dash. It converts the electric energy in the heat energy. Okay, we prefer a wire of dash for making the heating element in domestic appliances like electric iron, electric heater, electric toaster, etc. Nichrome wire we use. Okay, nichrome is our answer. Okay, next one we have the a safety device based on heating effect of electric current is called electric fuse. Electromagnet should have a rapid on and off action like electric switches. Okay, now next we have the true false. An electric current can produce a heating effect but not a magnetic effect. That is true. Okay, the heating coils element of different electric appliances are usually made from copper or aluminium wire. That is false. When the current through a fuse wire exceeds its specified value, the fuse wire melts and breaks. That is false. Number 4, connecting many devices in a single socket is not likely to cause any problem in a circuit. That is false. The strength of electromagnet can be increased by decreasing the number of turns of its coil. That is also false. Now part C, when electric current flows from through a filament of electric bulb, the filament gives out heat energy only. Our answer is heat energy. Not our answer is both heat and light energy. Heat and light energy. Fuse wire is a wire of high resistivity and low melting point. A part is our answer. We are more likely to observe a strong magnetic effect with a current carrying straight wire. That answer is also part A. Okay. Now question number 4. A common household device that use electromagnet on its working is electric bell. That is answer is electric bell. A good electromagnet would act like magnet when the current is on, but would not do so when the current is off. A part is our answer. Okay. Now in the part D, we have the question answers. The bulb in electric circuit shows in the figure does not glow. Why? Redraw the circuit diagram by making the necessary change in it so that the bulb start glowing. एक सर्किट दिया हुआ है, बल्ब उसका ग्लो नहीं करेगा. इसका रीज़न क्या है? इन दिस सर्किट द सेल इन द बैटरी हैव बीन, दैट इज़ द बैटरी हैव बीन रॉन्गली प्लेस्ड. सेल जो है रॉन्गली प्लेस्ड होगा. नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ बोथ द बैटरीज आर फेसिंग ईच अदर. जो दोनों बैटरी हैं उनका नेगेटिव फेस जो है एक दूसरे की तरफ फेस हैं. ड्यू टू दिस बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा. नेक्स्ट वी हैव द name the 3 practical device based on the heating effect of current. Answer is electric iron, electric toaster, geyser, sandwich maker, electric kettle, etc. Okay, write 2 special characteristics of wire need for making the element of an electric heater. The wire should have low resistivity एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. जो हीटर के एलिमेंट में वायर यूज़ की होगी उसकी रजिस्टिविटी लो और मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए. गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट.
short circuit when a positive wire touches a negative wire, positive wire नेगेटिव वायर को टच करेगी, it results in electric spark, इससे इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा, sometime can lead accidental fire, इससे फायर भी आ सकती है, आग लग सकती है, this is called short circuit. Overloading when more than one appliance is attached to a socket, एक socket में एक से ज़्यादा appliances हम लगा देंगे, it leads to overload in the circuit, यह overload हो जाएगा सर्किट के अंदर. Next one we have question number 5. Do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags from a garbage heap? Explain. आप कैसे मानते हैं कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो अलग किए जा सकते हैं गार्बेज हीप से? इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेट केवल मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं. प्लास्टिक इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड द गार्बेज में कंटेन मैनी अदर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. प्लास्टिक जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और गार्बेज में और बहुत सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो सकते हैं. हैंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द गार्बेज हीप. नेक्स्ट, स्टेट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. कहाँ कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का? इन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर, पावरफुल क्रेन्स. ओके, नाउ पार्ट ई. In the part E, the same amount of current flows through the connecting wires and the bulb filament. However, it is only the filament that glows. Why? The filament of a bulb is made up of tungsten, which has very high melting point and very low resistivity. जो बल्ब का फिलामेंट है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही हाई होता है, जबकि रजिस्टिविटी जो है बहुत लो होती है. दिस इज ड्यू द फिलामेंट ऑफ बल्ब ग्लो, इस वजह से बल्ब का फिलामेंट ग्लो करता है. विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर में ऐसा नहीं होता. ओके, नेक्स्ट वन, ब्राइटनेस ऑफ ए लाइट emitting by the bulb is observed to decrease when the electric heater is connected in series with it. जब किसी इलेक्ट्रिक हीटर को बल्ब के साथ सीरीज में हम लगा देते हैं, मतलब उसी उसमें सीरीज में, तो बल्ब जो है वो हमें कम ब्राइटनेस दिखती है उसकी. इसका रीज़न बताएं. सजेस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन. व्हेन द इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिक बल्ब, सम ऑफ द करंट इज यूटिलाइज्ड बाय हीटर एंड एज ए रिजल्ट द बल्ब गेट लेसर अमाउंट ऑफ करंट. इससे क्या होगा, जो हीटर है वो ज़्यादा मात्रा में करंट को लेगा, इसलिए बल्ब को कम मात्रा में करंट मिलेगा. ड्यू टू दिस द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब लाइट एमिटिंग बाय द बल्ब इज ऑब्जर्व टू बी डिक्रीज. इस वजह से बल्ब की जो लाइट है वो हमें ब्राइटनेस जो है वो कम दिखाई देगी. ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3. सुजेस्ट एन एक्सपेरिमेंट सेटअप टू यूटिलाइज द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज. इलेक्ट्रिक फ्यूज के एक्शन को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताइए. फॉर दिस यूज ए बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, फ्यूज वायर. इसके लिए हम क्या करेंगे, बैटरी लेंगे, कनेक्टिंग वायर लेंगे, फ्यूज वायर लेंगे. कनेक्ट एवरीथिंग टू मेक ए सर्किट. एक सर्किट को बनाने के लिए इनको कनेक्ट कर देंगे. इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द बैटरी 1 by 1. एक एक करके इन नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाते जाएंगे. आफ्टर द एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स, एक जगह पर आकर ऐसी सिचुएशन आएगी, यू विल ऑब्जर्व दैट द फ्यूज वायर मेल्ट्स. आप देखेंगे कि फ्यूज वायर जो है वो मेल्ट हो गई है. दिस एक्सपेरिमेंट शोज द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज. इलेक्ट्रिक फ्यूज के एक्शन को दिखाता है. A novice electrician which carrying out some repair of Sumit's house tried to put the place the tungsten wire in a fuse. सुमित कोई लड़का है, उसके घर में एक इलेक्ट्रीशियन जो है वो फ्यूज वायर में टंगस्टन वायर लगाने की कोशिश कर रहा है. सुमित फादर ऑन नोटिसिंग दिस स्टॉप हिम फॉर डूइंग सो. सुमित के फादर उसको ऐसा करने से मना करते हैं, वो देख लेते हैं इस चीज़ को. Give reason as to why he did that. Tungsten has a very high melting point. टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. फ्यूज वायर नीड टू वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, जबकि फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए. सो बाय दिस पॉइंट शो दैट इट कैन ब्रेक्स द सर्किट इन केस ऑफ ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट. अगर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होगा तो वो मेल्ट नहीं होगा. दिस पर्पज कैन नॉट बी सर्व्ड बाय टंगस्टन वायर. टंगस्टन वायर का अगर है तो वो मेल्ट नहीं होगा. ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रीशियन वाज स्टॉप्ड बाय सुमित फादर.
इस वजह से सुमित के फादर ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन, ड्राई वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। ये डायग्राम आपका है, बुक के अंदर आपको मिलेगा, आप इसको ड्रा करें। मैं वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग क्या होगी वो देखिए। When current flows through the coil it becomes electromagnet। जब करंट फ्लो करता है कॉइल में से तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर। इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है सॉफ्ट आयरन आर्मेचर को। विद दिस द आयरन हैमर मूव्स एंड हिट्स द गोंग टू प्रोड्यूस साउंड। जो हैमर है वो गोंग यानी कि जो वो कटोरी टाइप होती है उस पर लगेगा और साउंड प्रोड्यूस होगा। व्हेन द आयरन हैमर एंड द आर्मेचर मूव टूवर्ड्स द गोंग। जब आयरन हैमर और आर्मेचर जो है वो गोंग की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाएगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट लूज इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। द आयरन आर्मेचर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। जो आयरन आर्मेचर है वो अपनी वापस उसी पोजीशन में आएगा। विच हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द सर्किट अगेन। इस वजह से दोबारा सर्किट बन जाएगा। द प्रोसेस कीप ऑन रिपीटिंग एंड द बेल प्रोड्यूसेस ए कंटिन्यूअस रिंगिंग साउंड। ये प्रोसेस बार बार चलता जाएगा और ये जो बेल है वो साउंड प्रोड्यूस करती रहेगी। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसी के साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको अच्छे से करें। ओके, थैंक यू सो मच।